السلام علیکم، سچ نیوز کے ساتھ میں ہوں ارسلان کھوکر۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی۔ آغاز اس دعا کے ساتھ، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے ہمارے لیے آسانیاں پیدا کی۔ اے رب شہدائے کربلا کے صدقے ہمیں اتفاق اتحاد عطا فرما اور ہر طرح کی آفات سے محفوظ رکھ۔ سب سے پہلے بلیٹن میں بات ہوگی اربعین کی۔ کنار قدم های جابه سوی نیلوا ره سپاری ستون ها محسن کو رلائے گا تا حشر لہو اکثر، زہرا تیری کلیوں کا یوں صحرا میں بکھر جانا۔ شہدائے کربلا کا چہلم عقیدت و احترام سے منایا گیا۔ کراچی میں مرکزی جلوس بہشتر پاک سے برآمد ہوا، جو امام بارگاہ حسینیہ ایرانیہ کھارا در پہنچ کر اختتام پذیر ہوا۔ یا برپا ماتم گھر گھر ماتم در در ماتم تیرا ہوتا رہے مولا ماتم گھر گھر ماتم۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے چہلم کے موقع پر ملک بھر کی طرح کراچی میں بھی ماتمی جلوس نکالے گئے۔ چہلم امام حسین علیہ السلام کا مرکزی جلوس مجلس کے بعد بو تراب اسکاؤٹ کی سربراہی میں نشتر پارک سے برآمد ہوا اور نمائش چورنگی سے ہوتے ہوئے ایم اے جینا روڈ پر امام بارگاہ علی رضا پہنچا، جہاں شرکائے جلوس نے نماز ظہرین ادا کی۔ نماز ظہرین کی ادائیگی کے بعد چہلم امام حسین علیہ السلام کا مرکزی جلوس 7 ڈیز سی بریز سے صدر، ایمپریس مارکیٹ، ریگل چوک، اس کے بعد دوبارہ تبت سینٹر کے مقام پر ایم اے جینا روڈ، جامع کلات، ڈینسو ہال، بولٹن مارکیٹ سے ہوتا ہوا امام بارگاہ حسینیہ ایرانیہ کھارا در پر اختتام پذیر ہوا۔ جلوس میں شریک عزاداران نے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے رفقا کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا۔ دیکھیں مولا حسین نے اپنے اولاد کی قربانی دی نا، بے شک ہے سب کچھ ہے، مگر مولا حسین کے صدقے سے سب کچھ مل رہا ہے۔ جلوس کے راستے میں عزاداران سید الشہداء کے لیے سبیلیں اور نظر و نیاز کا بھی اہتمام کیا گیا تھا اور مختلف تنظیموں اور اداروں کی جانب سے کیمپس بھی لگائے گئے تھے۔ مرکزی جلوس کے علاوہ شہر کے دیگر علاقوں سے بھی چہلم امام حسین علیہ السلام کی مناسبت سے ماتمی جلوس برآمد ہوئے اور روایتی راستوں سے ہوتے ہوئے اپنی منزل پر پہنچ کر اختتام پذیر ہوئے۔ پشاور میں چہلم امام حسین علیہ السلام کے موقع پر مختلف امام بارگاہوں سے برآمد ہونے والے جلوس اپنی اپنی امام بارگاہوں پر اختتام پذیر ہو گئے۔ عدنان شاہد کی رپورٹ۔ چہلم امام حسین علیہ السلام کے موقع پر پشاور میں 3 بڑے جلوس برآمد ہوئے۔ امام بارگاہ علمداد کربلا سے برآمد ہونے والا ماتمی اور شبیہ ذوالجناح کا جلوس اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا قصہ خوانی پہنچا، جہاں دیگر امام بارگاہ اخون آباد اور امام بارگاہ کوچہ رسالدار سے برآمد ہونے والا جلوس اس میں شامل ہو گیا، جس کے بعد جلوسوں نے مرکزی جلوس کی شکل اختیار کر لی۔ صبح سے پشاور میں 3 جلوس برآمد ہوئے ہیں۔ ایک امام بارگاہ علمدار کربلا سے، وہ امام بارگاہ اخون آباد آیا، وہاں سے دوسرا جلوس برآمد ہوا۔ یہ دونوں جلوس مرکزی شیعہ جامع مسجد کو سرسدار نکلے، وہاں سے یہ تینوں جلوس براستہ قصہ خوانی برآمد ہو کر اپنے مقرر راستوں سے جائے کہ قاسم علی خان جائے گا، اپنا کوچی بازار سے گزرتا ہوا واپس اپنے اپنے علاقوں پہ اختتامی پوائنٹ پہ جائیں گے۔ بی بی واپس آئی تھی اپنے لاشوں کو دفنانے کے لیے اور اپنے بھائی کا اور اپنی آل و اولاد کا چہلم کرنے کے لیے، اس کی مناسبت سے سب یہ لوگ اکٹھے ہوئے تھے۔ جلوس اپنے روایتی راستوں سے ہوتے ہوئے واپس اپنی ہی امام بارگاہوں پر اختتام پذیر ہو گئے۔ جلوس میں عزاداروں نے نواح خوانی کی اور امام حسین علیہ السلام کی قربانی کو یاد کیا۔ امام حسین کا یہ چہلم اصل میں یاد حسینی و یاد حسینی کے نتیجے میں اسلام کی حیات، اسلام کی تجدید و اسلام کی بقا کا ذریعہ ہے۔ چہلم امام حسین علیہ السلام کے موقع پر عزاداروں کے لیے جگہ جگہ پر سبیلیں جبکہ نیاز کا بھی اہتمام کیا گیا تھا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ عدنان شاہد، سچ ٹی وی، پشاور۔ ملک کے دیگر حصوں کی طرح کوئٹہ میں بھی امام بارگاہ مومن آباد سے برآمد ہونے والا چہلم کا مرکزی جلوس ہزارہ قبرستان پہنچ کر اختتام پذیر ہوا۔ رپورٹ کریں گے عبدالغنی کاکڑ۔
हुकूमत कोयटा में शोहदाए करबला की याद में चहलम का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह मोमिनाबाद से सख्त हिफाजती इंतजामात में बरामद हुआ। 22 मातमी दस्तों पर मुश्तमिल जुलूस की क़ियादत बलूचिस्तान शिया कॉन्फ्रेंस के सदर सैयद दाऊद आगा, अल्लामा जुमा असदी और दीगर उलमा कराम कर रहे थे। मातमी जुलूस के शुरका रास्ते में नोहा ख्वानी और मातमदारी के जरिए शोहदाए करबला को पुरसा पेश करते रहे। गरीब ज़हरा की गुर्बत सुनो ए ग़ैले अज़ा। जुलूस के रूट में मुख्तलिफ मकामात पर दूध और शरबत की सबीलें भी लगाई गई थीं। बलूचिस्तान शिया कॉन्फ्रेंस के सदर सैयद दाऊद आगा ने मीडिया से गुफ्तगू के दौरान बताया कि इस साल मरकजी जुलूस में खवातीन और बच्चों ने भी कसीर तादाद में शिरकत की है और इस हवाले से कोयटा में खुसूसी इंतजामात किए गए थे कि चूँकि 40 इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में लोग करबला नहीं जा सके, तो आज खवातीन, बच्चे, बुजुर्ग सारे इस जुलूस में शरीक होकर बेहिश्त ज़ैनब हज़ारा कब्रिस्तान में खवातीन के लिए अलग मजलिस का एहतमाम किया गया है। वो भी इंशाल्लाह खवातीन भी इस जुलूस में शरीक होंगे। अलम, ताजिए और जुलजना के मातमी दस्तूर पर मुश्तमिल मरकजी जुलूस अपने रवायती रास्तों ताज मोहम्मद रोड, तोगी रोड, यजदान खान रोड और अलमदार रोड से होता हुआ बेहिश्त ज़ैनब कब्रिस्तान पहुँचकर पुरअमन तौर पर इख्तिताम पजीर हुआ। इस मौके पर सिक्योरिटी के मौसर इंतजामात किए गए थे और जुलूस के रूट समेत मुख्तलिफ हसास मुकामात पर पुलिस, नेवीज और FC के 4000 से ज्यादा एहलकार तैनात किए गए थे। जुलूस के रूट में मुंतजिमीन की जानिब से बाज़ शुरका में मास्क और सैनिटाइजर्स भी तकसीम किए गए और कोरोना SOPs का जुलूस के दौरान हर मुमकिन ख्याल रखा गया। कैमरामैन अली खान के साथ अब्दुल गनी काकर, सच न्यूज, कोयटा। रावलपिंडी में बरामद होने वाला चेहलुम के मातमी जुलूस रिवायती रास्तों पर रवा दवा है। जुलूस इस वक्त कहां पहुंचा है, ये जानेंगे सजाद काज़मी से। सजाद, बताइएगा। आज चेहलम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और शोहदाए करबला का जो मरकजी रावलपिंडी का जुलूस है वो इस वक्त फुआरा चौक से होता हुआ, बाजार कलां से होता हुआ इस वक्त जो है जामिया मस्जिद रोड की तरफ गामजन है, जो कि रात गया जाकर इमाम बारगाह कदीमी में जाकर जो है इख्तिताम पजीर होगा। ज़रानी मज़लूम करबला की बड़ी तादाद जो है वो इसमें शरीक है, जो कि मसाइब अहले बैत और मसाइब शोहदाए करबला जो है बयान करते और गिरिया उजारी करते और मातमदारी करते हुए सफ बंदी के साथ जो है सफ दर सफ जो चल रहे हैं और मुख्तलिफ मकामात पर उलमा और ज़ाकिरीन की जानब से खिताब भी जारी हैं और मसाइब अहले बैत और जो पर्दादराने ततहीर के जो है मसाइब बयान किए जा रहे हैं। और ज़रानी मज़लूम करबला की बड़ी तादाद जो शरीक है, सिक्योरिटी के भी यहाँ पर सख्त इंतजाम किए गए हैं और आसपास जो है खारदार तारे लगाकर ये जो है जो इलाके को इसको सील किया गया है। उसके साथ साथ देखा जाए तो यहाँ पर जो ज़रानी मज़लूम करबला की बड़ी तादाद है वो यहाँ पर सबील भी यहाँ पर लगाए हुए हैं। शुदाई करबला और करबला के शुदा के प्यासों की याद में जो सबीलों का जो है वो भी लगाई गई। साथ साथ लंगर हुसैनी का भी वसी इंतजाम किया गया और जो ये रात गए जाकर ये इमाम बारगाह कदीमी में ये जुलूस जो है इख्तिताम पजीर होगा। बहुत शुक्रिया सजाद काज़मी। दीन इस्लाम की बका के लिए करबला के मैदान में दी जाने वाली अजीम कुर्बानी को शहर शहर खिराज अकीदत पेश किया गया। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में चेहलुम अकीदत व एहतराम से मनाया गया। कारगिल लद्दाख में पाबंदियों के बावजूद शोहदाए करबला को पुरसा पेश किया गया। गिलगित शहर में चेहलुम का मरकजी जुलूस अंजुमन हुसैनिया खजाना रोड से बाद अज मजलिस बरामद हुआ, जो रिवायती रास्तों बेनजीर चौक मस्जिद रोड से होता हुआ आस्ताना शोहदाए अम्फरी पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुआ। अज़ादारों ने नौहा खानी और सीना जनी करके नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुरसा पेश किया। बल्तिस्तान डिवीजन के चारों अजला में 1000 से जायद मातमी जुलूस बरामद हुए। मातमी दस्ते रिवायती रास्तों से होते हुए कतलगाह शरीफ पहुंचे, जहां शोहदाए करबला की जियारात के बाद वापस अपनी अपनी बारगाहों में पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुए। जुलूस में गैर मुल्की सयाहों ने भी शिरकत की। हुंजा नगर में भी करबला वालों की याद में मातमी जुलूस बरामद हुए। आजाद कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में भी मातमी जुलूस बरामद हुए। मीरपुर, मुजफ्फराबाद, कोटली समेत दिगर अजला में फिजाएं लब्बैक या हुसैन की सदाओं से गूंजती रहीं। उधर कारगिल लद्दाख में नाम निहाद जमहूरी मुल्क भारतीय पाबंदियों और रुकावटों के बावजूद
अज़ादारों ने शोहदाए कर्ब व बला से अकीदत का इजहार किया। मुख्तलिफ मकामात पर मातमी जुलूस बरामद किए गए। इमाम आली मकाम अलैहिस्सलाम और उनके अजीम रफ़क़ा को पुरसा पेश किया। दूसरी जानिब मकबूजा वादी में भारतीय रियासती दहशतगर्दी जारी रही। अवाम को घरों से निकलने पर पाबंदी लगाई गई। मातमी जुलूस भी नहीं निकाले जा सके। मुल्क भर में नवासाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके रुफ़क़ा का चेहलों में इंतहाई अक़ीदत और एहतराम से मनाया गया। अजीम कुर्बानी देने वालों को खिराज अक़ीदत पेश किया गया। शहर शहर लब्बैक या हुसैन की सदाएं गूंजती रहीं। मुल्क के छोटे बड़े शहरों में चेहलुम शोहदाए करबला की मुनासबत से मजालिस और जुलूस आज़ा बरामद किए गए। करोड़ों आज़ादारान हुसैन अलैहिस्सलाम ने शिरकत करके शोहदाए करबला को पुरसा पेश किया। गली गली लब्बैक या हुसैन की सदाएं गूंजती रहीं। सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद में कदमगाह मौला अली अलैहिस्सलाम पर जुलूस आज़ा बरामद हुआ, जिसमें लाखों आज़ादारान ने शिरकत की। सक्खर में सिंध का सबसे बड़ा जुलूस रोहड़ी करबला मैदान से बरामद हुआ। तारीखी जुलूस में शिरकत के लिए मुल्क भर से आए हुए आज़ादारान ने मातमदारी और सीना जनी करके शोहदाए करबला को पुरसा पेश किया। नवाब शाह में भी सैकड़ों जुलूस बरामद हुए, जिनमें हजारों आज़ादारान शरीक हुए। सांगड़ में चेहलुम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मुनासबत से मुनक्किदा जुलूसों में शरीक आज़ादारान ने मातमदारी की। कंदकोट, मीरपुर माथेलो, घोटकी समेत सिंध के तमाम छोटे बड़े शहरों में जुलूस बरामद करके शोहदाए करबला को सलाम अकीदत पेश किया गया। मुल्तान में चेहलुम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कई जुलूस बरामद हुए, जिनमें आज़ादारान हुसैन ने बड़ी तादाद में शिरकत की। चकवाल में चेहलुम सैयदुल शुहदा हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सिलसिले में शबी आलम, जुलजना और ताजिये का जुलूस मस्जिद बाकिर शाहानी से बरामद हुआ। चकवाल में ही करबला न जा सकने वाले आज़ादारान ने पैदल ही शबी रोज़ा हजरत अब्बास अलमदार का रुख किया और पुरसा पेश किया। शुजाबाद में चेहलुम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मरकजी जुलूस काशिफ हुसैन शाह के घर से बरामद हुआ। मियांवाली में चेहलुम सैयदुल शुहदा के इस सिलसिले में आज़ादारान पैदल चलकर मरकजी जुलूस तक पहुँचे। माड़ी शहर के आज़ादारान ने कालाबाग तक पैदल वॉक की। पैदल वॉक में आज़ादारान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बड़ी तादाद शरीक हुई। खैबर पख्तूनख्वा में चेहलुम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मुनासबत से बड़े बड़े जुलूस बरामद किए गए। बन्नू में चेहलुम इमाम हुसैन का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह हुसैनिया मंडान गेट से बरामद हुआ। जुलूस रेलवे रोड से होता हुआ मिलाद पार्क पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुआ। कोहाड़ में मातमी जुलूस इमाम बारगाह रिजविया से बरामद हुआ। हंगू और कुरम एजेंसी के इलाके पारा चनार में भी सैकड़ों जुलूस बरामद हुए, जिनमें लाखों आज़ादारान हुसैन ने शिरकत की और लब्बैक या हुसैन की सदाएं बुलंद करते हुए शोहदाए करबला को पुरसा पेश किया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और शोहदाए करबला को खिराज अकीदत पेश करने के लिए उनका चेहलुम रिवायती अकीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। मातमी जुलूसों में आज़ादारान भी बड़ी तादाद में शरीक हैं। पाकिस्तान और इराक समेत दुनिया भर में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और शोहदाए करबला को खिराज अकीदत पेश करने के लिए उनका चेहलुम रिवायती अकीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। दुनिया में सबसे पहले चेहलुम के जुलूस ऑस्ट्रेलिया के शहर कैनबरा, सिडनी और वेल्स में निकाले गए। सिडनी सिटी सेंटर से जुलूस में बड़ी तादाद में आज़ादारान शरीक हुए। एशियाई ममालिक में ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान समेत कुम, मशहद और दीगर शहरों में शोहदाए करबला के चेहलुम के मातमी जुलूस बरामद हुए और मजालिस बर्पा की गयी। इसी तरह एशिया के दीगर ममालिक में बांग्लादेश, उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान समेत रूस की मुख्तलिफ रियासतों में भी मातमी जुलूस निकाले गए। लेके दाग सीने पर तुर्की के मुख्तलिफ शहरों समेत अरब ममालिक, शाम, लिबनान, कतर और ओमान समेत दीगर ममालिक में मातमी जुलूस निकाले गए। सऊदी अरब, बहरीन, कुवैत समेत दीगर ममालिक में मजालिस आज़ा बर्पा की गयी। जापान के दारुल हुकूमत टोक्यो, कोरिया के दारुल हुकूमत सियोल समेत इंडोनेशिया, मलेशिया समेत दीगर ममालिक में भी मातमी जुलूस निकाले गए। करबला के मैदान पर
यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक में भी चेलुम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मातमी जुलूस बरामद हुए। लंदन, मैनचेस्टर, ग्लासगो, ल्यूटन में भी मजालिस बर्पा की गयी। फ्रांस, स्पेन, इटली, पुर्तगाल, जर्मनी समेत दीगर कई ममालिक में मातमी जुलूस निकाले गए। अमरीका और कनाडा में उनके मकामी वक्त के मुताबिक मातमी जुलूस बरामद होंगे। लेके दाग सीने पर शाम की जुदाई का। लाहौर में चेहलुम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मरकजी जुलूस अपने रिवायती रास्तों पर गामजन है और करबला गामे शाह पर इख्तिताम पजीर होगा। फरहान एजाज हमारे साथ बराह रास्त मौजूद हैं। फरहान, बताइएगा। जी बिल्कुल, चेहलुम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मरकजी जुलूस हवेली अलिफ शाह से बरामद होकर अपने रवायती रास्तों पर गामजन है। जुलूस में जो है अज़ादारों की कसीर तादाद शरीक है, जिसमें छोटे छोटे मासूम बच्चों से लेकर जो है खवातीन की एक बड़ी तादाद मौजूद है। इसके साथ साथ जो है बुजुर्ग शहरियों की, बुजुर्ग अज़ादारों की कसीर तादाद यहाँ पर मौजूद है। जो जुलूस जो है अपने रवायती रास्तों से होता हुआ मस्जिद वज़ीर खां पहुंचा। मतलब वज़ीर खां से जो है वो सुनहरी मस्जिद और रंग महल पहुंच कर जहाँ पर जुलूस के शुरका ने नमाज दोहराइन अदा की। जुलूस में जो है अज़ादारों की कसीर तादाद नवासे रसूल को पुरसा अभी पेश कर रही है, नोहा खानी की जा रही है, मातम दारी जो है वो की जा रही है। इसके साथ साथ जुलूस पानी वाला तालाब, मुफ्ती बाकर, बाजार हकीमा, सराफा बाजार से होता हुआ जो है वो भाटी चौक पहुंचा है। इस वक्त जो है जुलूस भाटी चौक के करीब मौजूद है। हजारों की तादाद में अज़ादार अभी भी जो है जुलूस में शिरकत के लिए आए जा रहे हैं। सैकड़ों की तादाद में जो है अलम बरामद किए गए हैं और ताजिए बरामद किए गए हैं। इसके साथ साथ जो है शबीए जुलजना भी जो है वो बरामद किए गए हैं। इसके साथ साथ जो है शबीए ताजिए का जो मरकजी जुलूस है इस वक्त जो है भाटी चौक के करीब मौजूद है। अज़ादारों की कसीर तादाद जो है मेरे अकब में भी आप देख सकें, मेरा कैमरा में मोहम्मद दामन अगर आपको दिखा सके तो यहाँ पर जो है अज़ादारों की कसीर तादाद जो है अलम जो है वो थामे यहाँ पर जो है लब्बैक किया हुसैन के जो है वो नारेबाजी भी की जा रही है, मातमदारी की जा रही है, गिरियाजारी की जा रही है और नोहा खानी भी की जा रही है और लंगर न्याज भी जो है वो अज़ादारों में तकसीम किया जा रहा है। जुलूस का जितना भी रवायती जो है वो रूट है उस पर जो है लंगर न्याज के वसीब पैमाने पर जो है तमाम किए गए हैं। ये जुलूस जो है वो भाटी चौक से का शुक्रिया। आइए आपको करबलाए मौला लिए चलते हैं, जहाँ पर दुनिया भर से आए आशिकाने हुसैन रोज़ा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर हाजिर होकर पुरसा दे रहे हैं। امشي درب الزيارة يفرح وجهنا بسمارة واضح جدنا بقرارة خطوة بدون استخارة واضح جدنا بقرارة خطوة بدون استخارة امشي درب بدون استخارة يفرح وجهنا بسماعين العلامة واضح جدا بقرارة خطوة بدون استخارة خطوة بدون استخارة الأربعين العلامة شوق الموالي لماذا يحير اللي وصفه بكلامه صورة عشق لقيا امشي درب الزيارة يفرح وجهنا بسمارة واضح جدنا بقرارة خطوة بدون استخارة امشي درب بدون استخارة يفرح وجهنا بسماعين العلامة واضح جدا بقرارة خطوة بدون استخارة خطوة بدون استخارة الأربعين العلامة شوق الموالي मजीद खबरें होंगी एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। मुस्लिम लीग नवाज की रहनुमा मरियम नवाज कहती हैं, गद्दार करार देने वाले सुन लें, नवाज शरीफ आवाम के दिलों में बसता है। नवाज शरीफ के साथ गद्दार था तो मुल्क को रोशनियां दे गया। कैसा गद्दार था जिसने भारत के 5 धमाकों के जवाब में 6 धमाके किए, कौम को JF थंडर दिया। उन्होंने मजीद कहा कि नवाज शरीफ को हिरासत के दौरान 2 बार हार्ट अटैक हुआ। नवाज शरीफ ने सारे वार पहले अपने सीने पर सहे।
जब कुर्बानी देने का वक्त आएगा तो आप मरियम नवाज शरीफ को सबसे पहले सफ में खड़ा देखेंगे इंशाअल्लाह ताला। नवाज शरीफ ने कोई तहैया किया तो अल्लाह ताला ने उसकी मदद की, अल्लाह ताला ने अपनी नुसरत उतारी और नवाज शरीफ को फतह याब किया। तो इंशाअल्लाह ताला आज आपका जज्बा देख के मुझे ये यकीन हो गया है कि ये तहरीक अल्लाह के फजलो करम से कामयाब हो चुकी है। नवाज शरीफ ने सारे वार पहले अपने सीने पे सहे। नवाज शरीफ ने 70 साल की उम्र में नवाज शरीफ ने इस बीमारी के हाल में एक दफा नवाज शरीफ को अडयाला जेल में हार्ट अटैक हुआ और एक दफा नैब की कस्टडी में हुआ। वो सब नवाज शरीफ ने पहले अपने ऊपर सहा और उसके बाद उसने कारकुनों को आवाज दी। और आज भी उन्होंने जब आवाज दी है तो उन्होंने ये नहीं किया कि वो लंदन में बैठे, उन्होंने अपनी बेटी को, अपनी निहत्ती बेटी को कारकुनों की सफ में पहले खड़ा किया। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने फिर हुकूमत पर तनकीद करते हुए केसेस और गिरफ्तारियों को सियासी इंतकाम का नाम दे दिया। उन्होंने कहा ट्रायल शुरू हो गया था तब ही शहबाज शरीफ को गिरफ्तार कर लिया गया। इमरान खान के हुक्म पर शहबाज शरीफ को गिरफ्तार किया गया। नून लीग ने महंगाई का जिम्मेदार मौजूदा हुकूमत की नाकिस पॉलिसीज को करार दे दिया। शहबाज शरीफ का रेफरेंस दायर हो चुका था, उनके गवाहान का बयान मुकम्मल हो चुका था और जितने अप्रूवर्स बतौर नैब के वो तमाम चीजें मुकम्मल हो गई थी और ट्रायल शुरू हो गया था और उनको गिरफ्तार कर दिया गया। आज 83 पैसे फी यूनिट बिजली पाकिस्तान के सार्फिन के लिए महंगी कर दी है। जो 83 पैसे फी यूनिट बिजली महंगी हुई है उसका सारा असर, उसकी सारी सजा पाकिस्तान की आवाम के ऊपर मुंतकिल की गई है। ये गद्दारी के पर्चे, ये महंगाई, बेरोजगारी, मईशत की तबाहाली की वजह से शहबाज शरीफ को गिरफ्तार किया गया है। एक दफा फिर ठगों ने अवाम को बेवकूफ बनाने के जतन करने शुरू कर दिए। मौलाना फजल रहमान ने हमेशा उसूल के नाम पर वसूल की सियासत की। वजीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान कहते हैं नून और शीन लीग की गैर मौजूदगी में मीम लीग अपनी पार्टी सियासत का बेड़ा गर्क करने में बिल्कुल आजाद है। बेगम सफदर रहमान साहिबा की और मौलाना फजल रहमान साहब की मुलाकात हुई, लेकिन कितनी दिलचस्प बात है कि वो पार्टियां की जो दावा करती थी कि 2-2 दिन के मार्जिन पे लियाकत बाग, मोची दरवाजा और निश्तर पार्क में वो जलसे किया करती थी, आज जो है वो हारे हुए लीडर और 2 से 3 इजला के अंदर वोट बैंक रखने वाले लीडर के बरगुने मिन्नत हो चुके हैं। और पीडीएम पाकिस्तान डिमोलिशिंग मूवमेंट का सरबराह बनाकर अब बेगम सफदर रहमान साहिबा अपने आप को बाहर मफरूर करवाने के लिए ये उम्मीद लगाई बैठी है कि शायद मौलाना फजल रहमान साहब के सरसदके उन्हें बाहर जाने की इजाजत मिल जाएगी और उनके वालिद साहब को और उनके बाकी खानदान को एनआरओ मिल जाएगा। तो ये उनकी गलतफहमी है और मौलाना फजल रहमान साहब ने हमेशा वसूल के नाम पे वसूल की सियासत की है। पिछली दफा भी इन्होंने लॉन्ग मार्च करके अरबों खरबों पे हीठे थे जो है वो सारे इस पूरी आल पाकिस्तान लूटमार एसोसिएशन से। अब की बात फिर उनका मूल मेला लगेगा, लेकिन इंशाअल्लाह पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान डिमोलिशिंग मूवमेंट इसके तमाम अज़ाइम को जो है वो खाक में मिलाएगी। नवाज शरीफ की मुश्किलात मजीद बढ़ गई। नैब रावलपिंडी ने नवाज शरीफ का नाम इश्तिहारी होने के मामले पर लाहौर पुलिस को खतूत इरसाल कर दिए हैं। नैब रावलपिंडी के लिखे गए खत में कहा गया नवाज शरीफ के इश्तिहारी होने का रिकॉर्ड इमिग्रेशन सिस्टम में शामिल किया जाए। FIA जराये का कहना है कि नैब खत पर मुकम्मल अमल दरामद करवाया जाएगा। नवाज शरीफ के इश्तिहारी होने के मामले पर लाहौर पुलिस को भी खत इरसाल कर दिया गया जिसमें कहा गया नवाज शरीफ का इश्तिहार हर थाने में उनकी तस्वीर के साथ चस्पा करने और रायमंड में उनकी रिहाइशगाह के बाहर लगाया जाए। मुतालिका थाने में भी वारंट गिरफ्तारी का सरकारी रिकॉर्ड का इंदराज करवाने का कहा गया। एहतसाब अदालत ने पिंक रेजिडेंसी रेफरेंस में ओमनी ग्रुप के मालिक अनवर मजीद, अब्दुल गनी मजीद समेत तमाम मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी। ताहम मुल्जिमान ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। एहतसाब अदालत में जाली अकाउंट केस में पिंक रेजिडेंसी रेफरेंस की समाअत हुई। एहतसाब अदालत के जज आजम खान ने रेफरेंस की समाअत की। समाअत में ओमनी ग्रुप के ख्वाजा अनवर मजीद, अब्दुल गनी मजीद समेत मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। ताहम तमाम मुल्जिमान ने सेहत जुर्म से इनकार किया। अदालत ने आइंदा समाअत पर 3 गवाह तलब करते हुए रेफरेंस की समाअत 16 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। बंडल आइलैंड पर नया शहर आबाद होगा। जजायर पर मौजूद मुफीद मैंग्रोव्स को महफूज रखा जाएगा। गवर्नर से इमरान इस्माइल और वफाकी वजीर अली जैदी कहते हैं जामे मास्टर प्लान के तहत ये शहर आबाद किया जाएगा। सिंध हुकूमत से बात करने को तैयार है।
वज़ीर आला सिंध से इस पर मुलाकात भी करूंगा और अगर इसमें कहीं भी कोई रिजर्वेशन हमारे सूबे सिंध को आ रही है या सिंध की हुकूमत को आ रही है तो उसको दूर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट अकेला वफाक नहीं इसको बना सकेगा जब तक सूबा साथ नहीं देगा। पंजाब में इसकी तेजी की वजह यह है रावी यूनिवर्सिटी की कि उसमें सूबे के जो लोग हैं, सूबे की जो हुकूमत है, सूबाई हुकूमत वो साथ दे रही है। अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है और इतना बड़ा हवा खड़ा हो गया। सो जस्ट आराम से रिलैक्स। और जहां तक सिंध गवर्नमेंट की बात है, मैं उस दिन मुर्तजा वहाब की इत्तफाकन प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था, हमने कहा जी हम फवाद से बात करने को तैयार है, तो हम भी बात करने को तैयार है। अभी हमने कराची जो पैकेज किया है इतना बड़ा 1.13 ट्रिलियन का, उसमें क्या हम सिंध हुकूमत के साथ बैठ के बात नहीं की हमने? सिंध के जजायर पर नए शहर की तामीर का ख्वाब अधूरा दिखाई देने लगा। सिंध के 2 जजायर से मुतालिक सदारती ऑर्डिनेंस को चैलेंज कर दिया गया। सिंध के 2 जजायर से मुतालिक सदारती ऑर्डिनेंस चैलेंज हो गया। अदालत ने दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर करते हुए विफाकी और सूबाई हुकूमत समेत दीगर को 23 अक्टूबर के नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस यूसुफ अली ने समाअत की। दरख्वास्त गुजार ने मौके पर अपनाया कि सदारती ऑर्डिनेंस गैर आईनी, गैर कानूनी है। असेंबली के जरिए तरमीम के लिए 2/3 अक्सरियत होनी चाहिए। 18वीं तरमीम के बाद इख्तियारात सूबाई हुकूमत के पास हैं। अदालत से इस्तदा है सदारती ऑर्डिनेंस गैर कानूनी है, कालअदम करार दिया जाए। खबरें होंगी ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगानिस्तान ज़ल्मे खलीलजाद ने मुलाकात करके खित्ते की सूरत हाल समेत दीगर अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया। तर्जुमान पाक फौज मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार के मुताबिक आर्मी चीफ और अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगानिस्तान के दरमियान मुलाकात जनरल हेडक्वार्टर GHQ में हुई। मुलाकात के दौरान पाकिस्तान के लिए नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगानिस्तान मोहम्मद सादिक और कमांडर रेजोल्यूट सपोर्ट मिशन जनरल ऑस्टिन भी मौजूद थे। मुलाकात में पाक अफगान सरहदी इंतजामात और अफगान अमन अमल में हालिया पेशरफ्त पर गौर हुआ। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार के मुताबिक दोनों अमरीकी हुकाम ने अफगान अमन अमल में पाकिस्तान के मुस्बत किरदार को सराहा। सुप्रीम कोर्ट ने न्यूयॉर्क हमला मंसूबे के मुल्जिम तला हारून की अमरीका हवालगी रोकने के हुक्म इम्तना में तौसीह कर दी। जस्टिस काजी अमीन ने रिमार्क दिए कि अब तो बात करने भी दहशत गर्दी का मामला लग जाता है। तला हारून ने आखिर कौन सी दहशत गर्दी कर दी? हुकूमत कह रही है अमरीका ने बंदा मांगा है तो हवाले कर दो। सुप्रीम कोर्ट में न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर हमला केस के मुल्जिम तलहा हारून की अमरीका हवालगी से मुतल्लिक केस की समाअत हुई। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने मुल्जिम को अमरीका के हवाले करने के हक में दलाइल देते हुए कहा कि पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान मुल्जिमान के तबादले का मुआहदा मौजूद है। जस्टिस मुशीर आलम ने पूछा, क्या अमरीका का रवैया भी हमारे साथ वैसा ही है जैसा हमारा इनके साथ है? एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि अमरीका ने 2008 में 2 मुल्जिमान फरीद तवक्कल और फारूक तवक्कल पाकिस्तान के हवाले किए। तलहा हारून के अहले खाना के वकील ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट हुसैन हक्कानी को हवाले करने का हुक्म दे चुकी है, लेकिन अमरीका ने हुसैन हक्कानी को पाकिस्तान के हवाले नहीं किया। जस्टिस काजी अमीन ने कहा कि अब तो बात करने पर भी दहशतगर्दी लग जाती है। तलहा हारून ने आखिर कौन सी दहशतगर्दी कर दी? हुकूमत कह रही है कि अमरीका ने बंदा मांगा है तो हवाला कर दो। जस्टिस मुशीर आलम ने कहा कि पाकिस्तान को बनाना रिपब्लिक ना बनाए। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि पाकिस्तान डमी रियासत नहीं। अदालत ने समाअत 15 अक्टूबर तक मुलतवी करते हुए तलहा हारून की अमरीका हवालगी रोकने के हुक्म इम्तना में तौसीह कर दी। पाकिस्तान और जनूबी कोरिया की बहरिया के माबैन मुश्तरका बहरी मश्क का इनेकाद किया गया। बहरी मश्क में पाक बहरिया के जहाज PNS जुल्फिकार और जनूबी कोरिया के जहाज ने शिरकत की। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक मश्क के दौरान नीले पानियों में मुख्तलिफ बहरी ऑपरेशन का इनेकाद किया गया। PNS जुल्फिकार इस वक्त रीजनल मैरीटाइम सिक्योरिटी पेट्रोल के सिलसिले में खलीज अदन में मौजूद है। ये बहरी मश्क समंदरी तहफ़्फ़ुज़ और इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए पाक बहरिया के अज़्म की अक्कासी करती है। इस मश्क का मकसद दोनों ममालिक की बहरी अफवाज के माबैन ताल्लुकात और ऑपरेशंस को मजीद फरोग देना है। ईरान ने चाबहार और गवादर बंदरगाहों के दरमियान किसी भी किस्म के मुकाबले की तरदीद करते हुए कहा कि दोनों बंदरगाहों के दरमियान राब्ते से खित्ते में खुशहाली आएगी। इस्लामाबाद में मुतय्यन ईरान के सफीर सैयद अली हुसैनी ने अपने एक बयान में कहा, चाबहार और गवादर पोर्ट्स के दरमियान किसी भी मुकाबले की तरदीद करते हैं।
ان دونوں بندرگاہوں کے درمیان رابطے اور تعاون سے خطے میں باہمی تجارت اور خوشحالی کو تقویت ملے گی۔ ایران چابہار اور گوادر کو حریف نہیں مانتا، دونوں کی ترقی سے خطے میں دو طرفہ تجارت اور ترقی میں اضافہ ہوگا۔ ایرانی سفیر نے کہا گوادر اور چابہار پورٹس کا رابطہ خطے میں خوشحالی اور ترقی کی نوید دیتا ہے۔ ایک اور ننھی زینب درندگی کا نشانہ بن گئی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان نے کم سن بچی کے ساتھ زیادتی اور قتل کے واقعے کا نوٹس لے لیا۔ ایک اور زینب درندگی کا نشانہ بن گئی۔ گزشتہ روز اغوا ہونے والی کمسن بچی کی لاش پشاور میں کھیتوں سے برآمد ہوئی۔ چارسدہ میں 2.5 سال کی بچی کو زیادتی کے بعد بے رحمی سے قتل کر دیا گیا۔ میڈیکل رپورٹ میں زینب سے زیادتی کی تصدیق ہو گئی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان نے کمسن بچی کے ساتھ زیادتی اور قتل کے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے IG KP اور دیگر حکام کو ملوث افراد کی فوری گرفتاری کا حکم دے دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ محمود خان کہتے ہیں واقعے میں ملوث افراد کو نشان عبرت بنایا جائے گا۔ واقعہ انتہائی دل خراش اور انسانیت سوز ہے۔ ملوث افراد کسی صورت قانون کی گرفت سے بچ نہیں سکیں گے۔ متاثرہ خاندان کو مکمل انصاف دیا جائے گا۔ حکومت نے بجلی کے صارفین پر نیا مہنگائی بم گرا دیا۔ نیپرا نے چپکے سے بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا۔ قیمتوں میں اضافے سے ضروریات کی اشیاء کی قیمتوں میں مزید اضافہ ہو جائے گا۔ ممبر سندھ اسمبلی رفیع شیخ نے کہا کہ پاور پلانٹ چلانے کا بوجھ صارفین پر ڈالنا کسی صورت درست نہیں۔ تبدیلی ہوا پھر چکنا چور، غریب اور متوسط طبقے کی مشکلات کم نہ ہو سکی۔ حکومت نے چپکے سے عوام پر پھر مہنگائی بم گرا دیا۔ ماہ جولائی کی فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں بجلی 83 پیسے فی یونٹ مہنگی کی گئی ہے۔ نیپرا کی جانب سے کہا گیا کہ فیصلے کا اطلاق لائف لائن صارفین اور کے الیکٹرک پر نہیں ہوگا۔ نیپرا کے فیصلے کے بعد صارفین پر 12 ارب روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا۔ نیپرا فیول پرائز ایڈجسٹمنٹ کے فیصلے کے حوالے سے ممبر سندھ کا اختلافی نوٹ بھی سامنے آ گیا۔ رفیق شیخ کا کہنا تھا کہ میرٹ آرڈر کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پاور پلانٹ چلانے کا بوجھ صارفین پر ڈالا جا رہا ہے۔ اداروں کی کارکردگی کا ملبہ صارفین پر نہیں گرانا چاہیے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر نے پاکستان میں کورونا کیسز بڑھنے پر تشویش کا اظہار کر دیا۔ اجلاس میں حکام کا کہنا تھا کہ ابھی تک مجموعی صورتحال قدر مستحکم ہے۔ NCOC کا کورونا کی صورتحال پر اہم اجلاس ہوا جس میں کورونا کی صورتحال اور SOPs کے تحت کھولے جانے والے شعبوں کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس کو بریفنگ دیتے ہوئے بتایا گیا عوامی اجتماعات، ریسٹورانٹس اور شادی ہالز کورونا کے پھیلاؤ کے مراکز بن چکے ہیں۔ عوامی مقامات پر ماہرین صحت کی ہدایات پر عمل نہیں ہو رہا۔ NCOC اجلاس میں کورونا کی ممکنہ دوسری لہر سے نمٹنے کے لیے جامع حکمت عملی پر تبادلہ خیال ہوا اور شراکت داروں سے مشاورت کا فیصلہ کیا گیا۔ اتفاق رائے کے بعد آئندہ چند روز میں نئی حکمت عملی پر عمل درآمد شروع ہو جائے گا۔ اس موقع پر وفاقی وزیر اسد عمر کا کہنا تھا کہ عوامی صحت بنیادی اہمیت کے حامل ہے۔ کورونا سے نمٹنے میں قومی کامیابیاں رائیگاں نہیں جانے دیں گے۔ بات کریں گے 2005 8 اکتوبر کے ہولناک زلزلے کی۔ کشمیر اور خیبر پختونخوا میں 8 اکتوبر 2005 کو آنے والے قیامت خیز زلزلے کی تباہکاریاں اور لرزہ خیز یادیں 15 سال بعد بھی باقی ہیں۔ چند لمحوں کے اس ہولناک زلزلے سے 87,000 سے زائد افراد جاں بحق، ہزاروں زخمی اور کئی علاقے صفائے ہستی سے مٹ گئے۔ اکتوبر 2005 کی صبح 8:52 پر رمضان المبارک کے مہینے میں اسلام آباد، خیبر پختونخوا، پنجاب اور آزاد کشمیر میں 7.6 شدت کا قیامت خیز زلزلہ آیا۔ اسلام آباد میں مارگلا ٹاور منہدم ہو گیا اور عمارتوں کو نقصان پہنچا تھا، جبکہ آزاد کشمیر اور مانسہرہ میں بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی۔ خیبر پختونخوا کی 10 سے زیادہ تحصیلیں صفائے ہستی سے مٹ گئیں۔ زلزلے کا مرکز وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے 95 کلومیٹر دور اٹک اور ہزارہ ڈویژن کے درمیان تھا۔ مظفر آباد اور بالا کوٹ شہر مکمل تباہ، جبکہ باغ، ہزارہ اور راولہ کوٹ میں ہزاروں لوگ متاثر ہوئے تھے۔ زلزلے میں 28 لاکھ لوگ بے گھر ہو گئے تھے، جبکہ ہزاروں زخمی ہوئے، جن میں سے آج بھی بہت سے معذوری کی زندگی بسر کرنے پر مجبور ہیں۔ زلزلے کے بعد سب سے پہلے افواج پاکستان نے ریلیف آپریشن شروع کیا تھا۔ اکتوبر 2005 سے نومبر 2006 تک افواج پاکستان کے ریلیف اینڈ ریسکیو آپریشن عالمی سطح پر سراہا گیا تھا۔
मुशर्रफ हुकूमत ने जल्जले से मुतासर अफराद को आबाद करने के लिए न्यू बालाकोट सिटी के नाम से शहर आबाद करने का फैसला किया, जो अभी तक जूं का तूं है। मुंतखब किए जाने वाले अवामी नुमाइंदे भी इन गमजदा मुतासरीन के लिए कुछ न कर सके। अरबों रुपए की गैर मुल्की इमदाद जो कि इन जल्जला मुतासरीन पर खर्च की जानी थी, हुकूमत इदारे एरा ने न्यू बरकराल सिटी के नाम पर खर्च कर डाली। आज भी मुतासरीन सऊदी हुकूमत की जानिब से दिए जाने वाले जस्ती चादरों के आर्जी शेल्टरों में रहने पर मजबूर हैं। हौलनाक जल्जले को 15 साल का अरसा गुजर गया है। जवा हिम्मत मुतासरीन जल्जला ने अपनी मदद आप के तहत दोबारा अपने पांव पर खड़े होने की एक अजीम मिसाल कायम की है। मुसलसल शेल्टर्स में गुजारने के बावजूद उनकी हिम्मत और हौसले जवां हैं। अरबाब इख्तियार की तरफ से उनकी बहाली के लिए कोई संजीदा इकदाम नहीं उठाए गए। जल्जले से लेकर अब तक कश्मीर में 7 मुख्तलिफ वजीर आजम बरसरे इख्तदार रहे, ताहम मुतासरीन के लिए किसी भी तरफ से कोई खातिर खा इकदाम नहीं उठाए गए। अमरीका तवील तरीन जंग के खात्मे के लिए इकदाम उठाने लगा है। अमरीका अफगानिस्तान में अपने फौजियों की तादाद मजीद कम करेगा। अमरीका के मुशीर बराए कौमी सलामती रॉबर्ट ब्राउन ने ऐलान कर दिया, नवंबर तक 4000 अमरीकी फौजी अफगानिस्तान में रहेंगे। अफगान अमन मुआहदे के तहत अमरीका ने अफगानिस्तान से फौजियों की तादाद मजीद कम करने का फैसला कर लिया। अमरीका के मुशीर कौमी सलामती रॉबर्ट ब्राउन ने ऐलान किया कि नवंबर तक अफगानिस्तान में अमरीकी फौजियों की तादाद 4 से 5000 के दरमियान तक कर दी जाएगी, जबकि आइंदा साल तक अमरीकी फौजियों की तादाद कम करके 2500 कर दी जाएगी। हुकाम के मुताबिक अफवाज में कमी का इन्हिसार अफगानिस्तान के हालात पर होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भी अफगानिस्तान से अमरीकी फौज का इनखला चाहते हैं, ताहम अभी कोई तारीख तय नहीं की। अमरीकी सदर ने कहा कि अफगानिस्तान से अमरीकी फौजियों का इनखला क्रिसमस तक मुमकिन होना चाहिए, ताकि अमरीका की इस तवील तरीन जंग के खात्मे के लिए इकदाम जल्द अज जल्द मुकम्मल हो सकें। इससे कबल तालिबान अमरीका अमन मुआहदे में तय पाया था कि अमरीका पहले मरहले में 4500 फौजी अफगानिस्तान से निकालेगा, जबकि 8500 फौजियों का इनखला मुआहदे पर मरहलावार अमल दरामद से मशरूत है। अमरीका के नायब सदारती उम्मीदवारों का पहला मुबाहिसा। नायब सदारती उम्मीदवार कमाला हैरिस का कहना था कि अमरीकी अवाम ने बदतरीन सदारती नाकामी देखी, जबकि दूसरी जानिब माइक पेंस ने दावा किया कि ट्रंप ने पहले दिन ही से अमरीकियों की सेहत को अव्वलीन तरजीह दी। अमरीका में सदारती इंतखाबात की मुहिम जोरों शोर से जारी है। अमरीका के नायब सदारती उम्मीदवार माइक पेंस और कमला हैरिस पहले मुबाहिसे में आमने सामने आ गए। दोनों शख्सियात ने अपने नजरियात अवाम तक पहुंचाने की कोशिश की। कमला हैरिस का कहना था कि डोनाल्ड ट्रंप को पता था कोरोना किस कदर मोहलिक है, मगर अवाम से छुपाया गया। उनके पास आज भी कोरोना से निपटने का कोई मंसूबा नहीं है। दूसरी जानिब माइक पेंस ने दावा किया कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पहले दिन ही से अमरीकियों की सेहत को अव्वलीन तरजीह दी। अमरीकी सदर ने चीन से परवाजों को बंद किया, लेकिन जो बाइडेन ने उसकी मुखालिफत की थी। अवाम को ट्रंप पर एतमाद है, वो कोरोना के मामले पर जिम्मेदाराना इकदाम उठा रहे हैं। अमरीकी नायब सदारती उम्मीदवार ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने लाखों डॉलर टैक्स दिया और नौकरियां फराहम की, जिसके जवाब में कमला हैरिस ने कहा कि अमरीकी अवाम ने बदतरीन सदारती नाकामी देखी है। डोनाल्ड ट्रंप के टैक्स गोशवारों से मुतालिक भी अवाम को मालूमात मिलनी चाहिए और ट्रंप दौर में जितनी नौकरियां खत्म हुई उसकी मिसाल नहीं मिलती। अब आपको लिए चलते हैं करबला मोहल्ला, जहां पर दुनिया भर से आए आशिकाने हुसैन रोजा हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर हाजिर होकर पुरसा पेश कर रहे हैं। صرح وجه السماء العلامة واضح جدا خطوة بدون استفارة بدون استعشاق الأربعين العلامة شوق الموالي لماذا يحير اللي وصفه بكلامه صورة عشق لقيا يمشي درب الزيارة يصرح وجهنا بسمارة واضح جدنا بقراره خطوة بدون استخارة يمشي درب بدون استخارة صرح وجه الأربعين العلامة واضح
बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। मजीद तफसीलात के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट searchtv.pk। देखते रहिए सच।